Welcome students. The next topic is distance time graph. In this we plot a graph between distance and time, and the slope that comes out of it gives the speed. This slope represents the speed in distance time graph. For example, an object covers 2 km in 2 hours. So 2 kilometer in 2 hours, and then another 2 km in next 2 hours, then another 2 km, that is from 2 to 4 in another 2 hours, that is up to 4. So in this way this graph is being plotted. So the total time taken is 4 hours, 2 plus 2 4, and the total distance covered is 4 km, 2 plus 2. And this slope it is a straight line, and this is the equation of a straight line. You might have studied this in mathematics. Y equals to mx plus c. This is the equation of a straight line. Y equals to mx plus c, where c is a constant value and m represents the slope. So this slope is represented by m. So here in this case, the c, the constant value, since this line passes through the origin, so here the value of c is 0. If suppose this line passes through 1 on y-axis, then the value of c will be 1. But in this case, since the c is 0, because the line is intercepting at origin, ठीक है ना, so that's why it is 0. So here in this case c is equal to 0. So therefore m, what will be the m? So m will be written as y upon x. Y upon x. So y is your this y axis and this is your x axis. And if you draw a triangle, a right triangle, and this is your theta, look at this diagram. So this is your y and this is your x and this is the theta. So tan theta is opposite upon base, that is y upon x. So y upon x can be written as tan theta. So tan theta will be your slope. And again y क्या है आपका, y क्या represent कर रहा है आपका, distance. तो y की जगह हम लिख सकते हैं distance. और x क्या represent कर रहा है आपका, time. So you can write time instead of x. So distance upon time. So what do you mean by distance upon time? Speed. Distance upon time is speed. So you can write this expression as speed. So here what we will get? We will get that the slope is nothing but the speed. So here what I am trying to say is this slope, the slope of distance time graph always represents the speed. So this is the proof of that. Therefore slope of a distance time graph is nothing but speed. तो m आपकी क्या है, स्पीड है. तो जो भी स्लोप आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर है. ऐसे हम दूसरा देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अगर आपको, तो ये 9th का टॉपिक है, इसलिए मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है ना, ये एज इट इज़ आप लोग 9th में पढ़ते हो. अगर आप चाहो तो एक क्विक रिवीजन आप ले सकते हो 9th का, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे 9th क्लास के जो मोशन चैप्टर है. तो आप वहाँ पे टाइम ग्राफ के जो 1-2 लेक्चर हैं वो आप वहाँ से अटेंड कर सकते हो. तो उसके बाद जब दोबारा इस पे आओगे तो ये आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ. तो हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे. इसमें पोजीशन और टाइम के बीच में. तो फॉर एग्जांपल, और पोजीशन बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, तो ये स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा,
वेलोसिटी, क्योंकि जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ था तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पीड। तो ऐसे जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ आएगा तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इन फॉर एग्जांपल इन ऑब्जेक्ट कवर्स 2 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है ना, कितने में, 2 आवर्स में, मतलब टाइम कितना लग गया, 2 आवर्स में 2 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमें हमारे सामने आता है ना, 2 और ये 2, तो ये दो यहाँ मिलता है, तो ये पॉइंट हमारे सामने आ गया। एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से शुरू किया था। तो 0 से शुरू किया था, 0 से 2 किलोमीटर कवर किया, फिर वापस जो है इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, मतलब उसी पोजीशन पे आ गया। कितनी देर में आया, इन नेक्स्ट 2 आवर्स, तो अगले 2 घंटे में वो वापस वहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई यहाँ से 2 किलोमीटर कवर किया, फिर वापस वहीं पे आ गया, ठीक है, लेकिन टाइम तो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, पहले 2 घंटे लगे, फिर वापस आने में भी 2 घंटे लगे, तो टाइम तो 4 घंटे लग गया। तो ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा कि पहले तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ी है और फिर डिस्प्लेसमेंट आपकी कम होते होते 0 हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका बनता है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब हम निकालेंगे इसमें स्लोप। तो इसमें स्लोप कितने हैं, 2 हैं, एक तो ये और एक ये 2 स्लोप है। तो इसका नाम दे देते हैं अपन S1 और इसका नाम दे देते हैं S2। तो हमें स्लोप निकालना है इसमें। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये स्लोप जो आएगा ये हमें एक्चुअल में क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो आप आइडिया भी लगा सकते हो वेलोसिटी क्या आनी चाहिए हमारी, 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, जहां से शुरू किया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी वही थी, 0 से शुरू किया था, और फाइनल पोजीशन भी वही है 0, क्योंकि वापस अल्टीमेटली उसी पोजीशन पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही चीज़ हम इसमें निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम स्लोप इसमें स्लोप की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है ना, कि वेलोसिटी 0 कैसे आती है। देखिए आप, तो इसमें 2 स्लोप हमारे पास, एक S1 है और एक S2 है। तो स्लोप और ये बीच में एक इसको, इस लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल निकल आए और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब देखिए ये एंगल जो इसमें आया है, तो ये पहले स्लोप के लिए है, तो इसमें tan थीटा 1 कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स। भाई tan थीटा कितना होता है, अपोजिट अपॉन बेस। तो अपोजिट क्या है, ये जो एक्सिस है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो अपन इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो ये भी क्या होगी, y, तो y अपॉन एक्स, ठीक है ना, y अपॉन एक्स। तो y कितना है, 0 से 2 किलोमीटर, और अपॉन टाइम कितना है, 2, तो 2 अपॉन 2 कितना हो गया, 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये तो स्लोप 1 हो गया। ऐसे स्लोप 2 देखिए आप, अब स्लोप 2 में हालांकि एंगल तो ये है अपना थीटा 2, ठीक है ना, लेकिन इस चीज़ में आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जब भी हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल शुड ऑलवेज बी मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप एंगल मेजर करेंगे। देखिए जैसे एरो मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से हम एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज अपन जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने को ये एंगल मेजर करना है ना, ये वाला। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना होगा ये, क्योंकि टोटल कितना है, 180 है, और ये एंगल है थीटा 2। तो 180 में से थीटा 2 अगर माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ गया अपने पास। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा 2। तो यही हमें चाहिए क्योंकि इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा 2, और 180 माइनस थीटा 2 ये आता है माइनस tan थीटा 2। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो ये। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है ना। tan 180 माइनस थीटा 2 जो होता है कितना होता है, माइनस tan थीटा 2 होता है। मैं आपको एक अलग से फॉर्मूले सारे प्रोवाइड करवा दूंगा इसके, स्पेशली जो बच्चे बायो के हैं उनके थोड़ा समझ में कम आएगा, तो उनको मैं इसके सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो मैथ्स वाले बच्चे उनको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है ना, तो वो वहाँ से उनका कवर हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस tan थीटा 2, और tan थीटा 2 क्या होता है, y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है, 2, और x की वैल्यू 2 से 4 कितना कवर हो गया, 2 कवर हो गया ना। तो 2 अपॉन 2 यानी कि 1, और ये माइनस के साथ है तो
-1 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्लोप 1 आ गया और ये स्लोप 2 आ गया। तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों स्लोप को, क्योंकि हमें तो एंटायर स्लोप निकालना है ना, तो दोनों स्लोप को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फॉर एंटायर जर्नी स्लोप, टोटल स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप 1 प्लस स्लोप 2। तो स्लोप 1 कितना था 1 और स्लोप 2 कितना है -1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0, ठीक है ना 0। और ये स्लोप क्या होता है, ये स्लोप ही है वेलोसिटी, तो यानी कि वेलोसिटी हमारी क्या होगी 0। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी और ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो 0 हो ही जाएगी, और यही चीज़ें हमने ग्राफिकली प्रूव भी कर दी है, ठीक है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें इंटरप्रिटेशन फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो हम ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी होगी। जैसे ये देखिए आप, ये ग्राफ क्या कहता है, यहाँ देखो टाइम तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी एक पोजीशन पे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, ठीक है ना। ये रेफरेंस पॉइंट मान लो आप कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी पोजीशन बढ़ रही है कि अभी भी 2 किलोमीटर पे ही खड़ा है। इसका मतलब इसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट पे। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है कि टाइम बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि जिस स्पीड से टाइम कवर हो रहा है उसी स्पीड से डिस्टेंस भी कवर कर रहा है ना। तो ये मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म। तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्लियर है। अब ये ग्राफ देखिए आप, थर्ड 0 से 1 तक, मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान ऑब्जेक्ट की पोजीशन वाई एक्सिस पे, पोजीशन पे कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो शुरू के 1 आवर तक ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, और उसके बाद उसकी स्पीड में बढ़ा वो होती है, उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट शुरू करता है, ठीक है ना। देन अटेन्स यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद जो मोशन है वो कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। ऐसे देखिए एक कर्व देखिए आप, सॉरी, ये ग्राफ देखिए आप फोर्थ। इस ग्राफ को देख के आप क्या समझ सकते हो कि 0 से लेकर 1 तक इस टाइम पीरियड के दौरान ऑब्जेक्ट लीनियरली बढ़ रहा है, यानी कि ये मोशन कैसी, यूनिफॉर्म है। और 1 से लेकर 4 तक ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ तक बढ़ा फिर थोड़ा सा घट गया है, तो ये बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो इसका मतलब ये मोशन कैसी, नॉन यूनिफॉर्म है। फिर 4 के बाद आप देखिए, 4 के बाद स्लाइटली चेंज इन पोजिशन और इफ स्ट्रेट देन एट रेस्ट। तो पहले थोड़ा सा बढ़ा है और उसके बाद ये फ्लैट हो गया कर्व, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे तो इस दौरान तो यूनिफॉर्म मोशन है और इस दौरान जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेदर योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो हम ग्राफ से भी हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो बस यही एक बताने का तरीका था कि हम ग्राफ से भी चीज़ों को बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप देखो हम एवरेज निकालते हैं, जैसे मार्क्स का एवरेज नहीं, जैसे मान लीजिए हाइट का एवरेज निकालना है, तो आप जैसे मान लीजिए क्लास में यू आर 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल ऑफ यू, तो व्हाट इज द एवरेज हाइट, तो आप क्या करोगे, सबकी हाइट को ऐड करोगे और फिर कितने बच्चे हो, 10 बच्चे हो तो 10 से डिवाइड कर दोगे, तो इससे क्या होगा, एवरेज हाइट निकल जाएगी। तो इसी तरीके से एवरेज स्पीड निकलती है, ठीक है ना। तो क्योंकि कभी भी स्पीड जो होती है व्हीकल की वो कांस्टेंट नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपको बगड़ से सिक्कर जाना है, तो आपकी व्हीकल की स्पीड एक ही रहेगी क्या, नहीं रहेगी, स्पीड कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ठीक है ना। लेकिन हम बोलते तो है ना कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया हूँ, ठीक है, या मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गया हूँ, तो ये हम बताते तो सिंगल वैल्यू है, जबकि ऐसा होता नहीं, वैल्यू तो चेंज होती रहती है, स्पीड तो कभी ज़्यादा हुई कभी कम हुई।
तो हमने एक्चुअल में क्या कर दिया, उसको एक एवरेज स्पीड बता दी, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, क्लियर है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि शुरू के 1 घंटे में तो स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट O से C तक गया, ठीक है ना, तो O से A तक गया तब तो उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग 1 आवर, एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 आवर्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 1 किलोमीटर पर आवर, एंड आफ्टर द लास्ट 3 आवर्स इट हैज अटेंड ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये अलग अलग स्पीड है अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि भैया इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, सारी स्पीड को ऐड कर दो और सभी टाइम को ऐड कर दो। तो स्पीड कितनी होगी, 2 + 1 + 4 कितना हो गया, 7, और टाइम कितना हो गया, 1 + 2 3 + 3 6, तो 7/6, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली 7/6 कर देंगे, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 7/6 यानी कि 1.15 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गई एवरेज स्पीड, इस तरीके से निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैथमेटिकली हमने निकाल दिया। लेकिन अगर ग्राफिकली निकालना हो तो ग्राफिकली कैसे निकालोगे, तो ग्राफिकली आपको करना क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है। ये जो डाटा गिवन है इसके हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो जैसे ग्राफ में जैसे शुरू के इसने 2 किलोमीटर, ये वाई एक्सिस के अलोंग किलोमीटर है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है जो कि आवर्स में है, और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर में है। तो 2 किलोमीटर कवर किए, यानी कि 0 से 2 किलोमीटर कवर कर लिया, कितने टाइम में, 1 आवर में। तो 1, तो ये 2 और ये 1 ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से एक पॉइंट ये आ गया। फिर दूसरा क्या है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर उसके आगे और चलाए थे, 2 से गया 3 तक, तो ये तीसरा नंबर का पॉइंट आ गया। और टाइम कितना लगा, 2 आवर्स लगे ना उसके बाद, तो 1 से 2 आवर कर दोगे तो 3 पहुंच जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को मिक्स कर दो तो एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 किलोमीटर, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। तो अगले जो 7 किलोमीटर हैं ये कितने टाइम में पूरे किए, 3 आवर्स में। तो 3 तो आवर पहले हो गए थे, तो उसमें 3 आवर और ऐड करो 6, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आ गए। अभी इन्हीं पॉइंट्स को लेके आपको ट्रायंगल बना देने हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक ट्रायंगल बन जाएगा पहले वाले पॉइंट के हिसाब से, फिर सेकंड वाले पॉइंट के हिसाब से ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ऐसे ही थर्ड के लिए। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हमें स्लोप निकालने हैं ना, हमें स्लोप निकालने हैं, क्योंकि हम स्लोप की हेल्प से बता सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ है, तो ये स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड। तो अब हमें स्पीड तो निकालनी है इसकी, ठीक है ना। और हम कौन सी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वही हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम v1 निकाल लेते हैं, ये v1, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी है ना। ये मान लीजिए v1 थी, ये v2 है और ये v3 है। तो पहले v1 निकाल लेते हैं। तो v1 यहाँ से, यानी कि θ1, तो tan θ1 है, तो इसमें y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो पहले कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 किलोमीटर, और टाइम कितना था, 1 आवर, तो 2/1। ऐसे v2 जो है, v2 कितना था, 1/2 आ जाएगा। ये सॉरी ये 2 है यहाँ पे, 1/2, ठीक है ना। और क्योंकि जैसे θ2 है, तो ये थीटा, ये वाला अगर हम ग्राफ लेंगे तो y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, तो 2 - 1, 2 से 3 तक गया ना, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 1 किलोमीटर, तो 1, और अपॉन में टाइम कितना कवर हुआ, 1 से 3 तक गया, तो कितना डिस्टेंस का कितना टाइम लगा, 3 - 1 यानी कि 2, तो 1/2 आएगा ये, तो 1/2 बनता है, ये 2 है। तो ऐसे 3 का देखिए आप, तो ये भी यहाँ तक आने में, यहाँ से गया था तो 3 से 6 तक गया, तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 3 से 6 तक 4, तो 4/, में कितना टाइम कवर हुआ, 3 से 6 तक 3, तो 4/3, तो ये यहाँ आ जाएगा। या फिर आप सिंपली अगर यहाँ से अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो ये सिंपली ये रखा हमने, 2/1, 1/2,
4/3 यही रखा है हमने, ठीक है, ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर इनको ऐड कर देते हो, इनका एवरेज निकाल लेते तो वो गलत होगा, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप को हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं, स्लोप्स कैन नेवर बी एडेड, स्लोप को हम ऐड नहीं करते इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि पिछले वाले एग्जांपल में हमने ऐड कर दिए थे स्लोप, क्योंकि वो सिंपल था, ठीक है ना, सिंपल स्पीड निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो स्लोप को कभी भी ऐड नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्लोप्स कैन नेवर बी एडेड इन केस इफ यू आर ऑब्टेनिंग एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, सिंपली जो इन सबको ऐड करके सिंपली निकालोगे, या फिर आप इनका अलग से एवरेज निकाल सकते हो, तो उससे भी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाएगा। आप इसको सिंपल ऐड करने के बजाय आप इनका एवरेज निकाल लो, आप इन तीनों का आप एवरेज तो निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो उससे भी आपको एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। भी एवरेज स्पीड तो समझ में आ गई, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम इस पीरियड में कितनी स्पीड है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए ओडोमीटर, इसमें ये जो है, ये जो मीटर है, ये आपको कौन सी रीडिंग देता है, ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड क्या होगी, ये वो स्पीड देता है। तो जब आप मान लीजिए अपने घर से जब आप मार्केट जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो स्पीड ये वेरी करती रहती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए आप किस स्पीड से आ रहे हो या किस स्पीड से जा रहे हो, तो आप कौन सी स्पीड बताओगे, तो आप एवरेज स्पीड बताते हो हमेशा कि लगभग मैं इतनी स्पीड से गया हूँ, वो एवरेज स्पीड आप बताते हो। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप इस वक्त किस स्पीड से चल रहे हो, तो आप क्या देखोगे उस वक्त, आप कैसे बताओगे, आप देखोगे कि आपकी जो ये इंडिकेटर है वो कितना किलोमीटर शो कर रहा है या कितना स्पीड शो कर रहा है, उस हिसाब से आप बता दोगे कि हाँ मैं अभी फिलहाल जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। तो वो जो स्पीड है वो क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे है, यानी कि वो कैसी स्पीड है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यानी कि ये जो है ये आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। और ये जो बीच में इंडिकेटर होता है जो आपको किलोमीटर बताता है, इसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ये क्या है, आपका ओडोमीटर होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो अब समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपने कितनी स्पीड कवर की है, और ये कौन बताता है, आपका स्पीडोमीटर बताता है। जैसे मान लीजिए Vx, अगर हमें इसका निकालना है कि व्हाट विल बी द स्पीड एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दिस Vx, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या होगी, तो आप सिंपली क्या बताओगे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, और टाइम कितना है यहाँ पे 4 आवर, तो 5/4 सिंपल आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। तो से एट पॉइंट Vx आपका कितना आ जाएगा, 5/4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। इसी तरीके से जैसे हमने स्पीड निकाली है और एवरेज स्पीड निकाली है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली है, उसी तरीके से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सेम वैसे निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए गिवन टाइम, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, टोटल कितना टाइम लगा है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका होता है ये, और इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ इसको डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स क्या है, चेंज कितना हुआ, तो मान लीजिए x2 माइनस x1, तो ये चेंज हो गया, ठीक है ना। और कितना टाइम लगा है, t2 माइनस t1, तो इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एवरेज निकालते हैं तो इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो ये एवरेज का सिंबल होता है। अगर बार नहीं लगाओगे तो सिंपल वेलोसिटी हो जाएगी, और बार लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला ये भी है कि हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, तो हम इनको दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका है एवरेज वेलोसिटी निकालने का,
ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और आप उस हिसाब से अपना फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ऐसे ही सेम आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेलोसिटी है, तो वो कैसे निकलेगा कि कितना उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो वो आपकी वेलोसिटी। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में, पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है? अब एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, ठीक है। और ये वाला पाथ उसने फॉलो किया है, ये रैंडम पाथ फॉलो किया है। तो कौन सा पाथ फॉलो किया है? डी पाथ फॉलो किया। तो हमें क्या निकालना है इसमें? वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड तो हम निकाल लेंगे, क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस ये आपको निकालना है डी, ये पूरा का पूरा डी है, और टाइम कितना लग गया टी, तो डी अपॉन टी सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डी डैश। तो ये क्या हो जाएगा? डी डैश अपॉन टी, ठीक है ना, डी डैश अपॉन टी। तो ये इस तरह से निकालेंगे। क्लियर है? ओके गाइज, थैंक यू।